Students, we are going to discuss today the topic that is pattern of biodiversity. Pattern of biodiversity is a very important question for class 12th examination as well as a NEET examination, and you must be assured that the question will be there in your final examination question paper. So here we will discuss two different topics under the pattern of biodiversity. One is latitudinal biodiversity or latitudinal gradient, and second one, the species area relationship curve. So these two are the very important question for your final examination. So be here with me for the next 30 minutes. So just try to understand what is the meaning of pattern of biodiversity. My dear child, biodiversity means what? The biodiversity is a term which is made of combination of two different scientific terms. One is bio and second one is diversity, and you can easily understand the different type of the availability of the different species, availability of different type of organisms on the different areas, that is called as biodiversity. या हम इसको कुछ इस तरीके से समझे कि if one area is being considered, so that area is not being unanimously is being occupied by a particular type of species. Instead of that a particular area is having so many species present over here. So this is what the biodiversity, किसी एक particular area में अलग अलग तरीके के organism का मिलना, अलग अलग तरीके के life resources का मिलना biodiversity कहलाता है. So this is very important question for your final examination. So we are just going to start. You can understand with the first point only. The diversity of the plant and animal is not uniform. You knows very well, you can understand well, because the environment and the structure of the earth is not uniform, not constant everywhere. So due to that, the diversity of the organisms cannot be constant, cannot be uniform throughout the earth, throughout the area. Instead of that, the diversity of organism is being changed place to place, area to area, features to features. So like that, the diversity of plant and animal is not uniform throughout the world, but it shows the uneven distribution. कहीं पे किसी एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ज्यादा होती तो दूसरे एरिया में उसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम होती है. Like that, you can see the penguins are located toward the polar areas, but we cannot observe the penguins there in the tropical area. So this is what the biodiversity. बहुत सारी ऐसी species हैं जो एक particular localized area में हैं और दूसरी species दूसरे area में है. मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि one species or one type of organism which is present here in the particular area will occur in the all or part of the world unanimously. एक जैसा सभी world part में मिलेगा. So this is what called as the biodiversity, and this biodiversity is showing the uneven distribution. So we are just going to discuss ki what is the pattern of distribution of the biodiversity throughout the world. So here we can observe some patterns like the latitudinal biodiversity, altitudinal biodiversity, geographical biodiversity, topographical biodiversity, and the humidity. Are you getting my point? Latitudinal biodiversity, altitudinal biodiversity, geographical biodiversity, topographical biodiversity, ह्यूमिडिटी बेस्ड बायोडाइवर्सिटी, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है, जिसके बेसिस पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होता है, वेदर इट इज प्लांट्स आर एनिमल. लाइक दैट लैटिट्यूडनल लैटिट्यूड्स पे डिपेंड करता है. एज वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल और फ्रॉम पोल टुवर्ड द इक्वेटर, द डाइवर्सिटी विल बी वेरी डेफिनेटली. द एल्टीट्यूडनल बायोडाइवर्सिटी हाइट के ऊपर, अपन अगर बॉटम ऑफ सी से ऊपर निकलेंगे, हाइट की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली the biodiversity will be affected thereon. Geographical factors are very important, very playing key role there in the biodiversity distribution. Topographical features, the lands are having the different range of the biodiversity, mountains will have the different range of the biodiversity, ओशंस में अलग बायोडाइवर्सिटी होगी, रिवर्स में अलग बायोडाइवर्सिटी होगी, प्लेन्स में अलग होगा, फॉरेस्ट में अलग होगा, और फॉरेस्ट में भी अलग अलग एरिया के फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके की बायोडाइवर्सिटी मिलेगी. जो रेन फॉरेस्ट है वहां पे अलग बायोडाइवर्सिटी होगी, टेम्परेट फॉरेस्ट है उसमें अलग होगी, कॉनिफेरस होंगे उसमें अलग होगी. सो दिस इज व्हाट द डिफरेंट फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हियर. Even though humidity can also play an important role in distribution of organisms, how we can say, because humidity is also a factor which is going to regulate the distribution, metabolism there. So based on the humidity, the organisms may distribute themselves as per the requirement. Here in our syllabus for class 12th and NEET, two major factors are there that we have to understand.
that is latitudinal gradient and species area relationship. So we are just going to start with the latitudinal gradient. Latitudinal means what? You can understand the earth is divided into many of the part based on the imaginary lines. The globe is being drawn, a globe has been drawn with some of the imaginary lines, some longitudes and latitudes. So latitudes are there, those who are running from north to south, तो उन लाइंस को अपन कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस. एंड ग्रेडियंट स्लोप कि अपन इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं या पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं. तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है और पोल से इक्वेटर की तरफ आने पे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है. So this is what the distribution pattern. So that is what, as we move away from equator to the poles, biodiversity reduce. ये बहुत common factor है. जैसे जैसे हम poles से जैसे जैसे हम equator से poles की तरफ जाते हैं, biodiversity में कमी आती जाती है. उसके पीछे reason ये है कि equatorial region is the great region where the maximum rainfall, maximum insolation and undisturbance is being observed, but the temperate region and the polar region undergone in various disturbance. Due to that disturbance, they are not able to perform the हैविंग द रिच बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को नहीं आती. तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट यू मस्ट रिमेंबर. एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, सो बायोडाइवर्सिटी विल बी reduced, not increased. This must be taken care. And remember, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी और पोल्स पे पहुंचने पे बायोडाइवर्सिटी मिनिमम हो जाएगी. वहां पे केवल few organisms will be available and those organisms will be exactly similar to each other. There is no variation occurs in those organisms. So biodiversity is minimum in the Arctic zone, moderate in the temperate zone and maximum in the tropical areas. So just understand, try to understand what is temperate zone, what is tropical zone, and what is the equatorial zone, and what is the Arctic or polar zone. Suppose this is an I have just tried to draw a diagram of the globe. एक sphere लिया, एक sphere that is earth. अब इसमें बीचों बीच जो लाइंस खींची गई, इस तरीके से लाइंस से डिवीजन होता है. सम लाइंस आर रनिंग फ्रॉम पोल्स टू पोल्स, ईस्ट टू वेस्ट. ये पोल से पोल आती हैं और ये इधर से इधर चलती हैं, तो ईस्ट से वेस्ट जाएंगी. दोज लाइंस आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स. जो परपेंडिकुलर लाइंस है दोज आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स. एंड सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड देयर इन द ग्लोब. दीज लाइंस आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड एंड वी आर ऑब्जर्विंग हियर द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. तो यहाँ होता क्या है, अगर हम लैटिट्यूड्स को ऑब्जर्व करते हैं तो इन बिटवीन ऑफ द ग्लोब द 0 डिग्री लैटिट्यूड इज देयर. दैट 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड एज इक्वेटर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? in middle of the globe, 0 degree one latitude is being drawn. That latitude is called as 0 degree latitude or equatorial line. This is the centermost line of the latitude or centermost line of the globe. ठीक है. अब इसी लैटिट्यूड से ऊपर की तरफ भी लाइंस ड्रॉ होंगी, ऊपर की तरफ भी मूवमेंट होगा और नीचे की तरफ भी मूवमेंट होगा. तो ये पूरा का पूरा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करेगा. दिस इज व्हाट द इक्वेटोरियल रीजन. अब इससे ऊपर जाएंगे तो अपन लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट को फॉर्म करेंगे. पोल्स की तरफ जाएंगे, ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे और नीचे जा रहे हैं तो साउथ पोल की तरफ जाएंगे. सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल. सो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट 0 डिग्री. अब 0 डिग्री से हम मेजर करना शुरू करते हैं. तो ये पहला जो कर्व मैं बता रहा हूं, दैट फर्स्ट कर्व इज marked by 23.5 डिग्री नॉर्थ. नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ. इसी रेंज को, दैट मींस द रेंज बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड एज लैटिट्यूडनल रेंज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसी पर्टिकुलर बेसिस पे हम देखते हैं diversity. Are you getting my point? The range falls between the 23.5 degree north and 23.5 degree south is called as latitudinal range. अब उसी तरीके से फिर अगला अपन 23.5 डिग्री उठा लें, 23.5 डिग्री मोर मतलब 47 डिग्री हो जाएगा. तो 23.5 डिग्री आगे चले गया और 23.5 डिग्री नीचे आ गया तो ये 47 डिग्री हो गया. ये रीजन आपका पूरा का पूरा कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज ट्रॉपिकल रीजन. इसके आगे आएंगे तो टेम्परेट रीजन और इधर आ जाएंगे पोल्स. तो हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी. इज इट क्लियर? एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर,
बायोडाइवर्सिटी विल रिड्यूस, या हम ऐसा कहें व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर बायोडाइवर्सिटी विल increase. So equatorial region or tropical region or latitudinal region will have the maximum biodiversity observed. Are you getting my point? तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि what is the temperate zone, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, टोटल 47 डिग्री का जो एरिया होता है that is called as temperate zone. Okay, moving on to the examples कि how we can understand with the latitudinal gradient. Latitudinal gradients को पूछा जाता है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी पूछे गए हैं. Latitudinal gradient को हम कैसे समझा सकते हैं? The first example we can say कोलंबिया. कोलंबिया इज लाइंग नियर टू द इक्वेटर, इक्वेटर के बिल्कुल पास में है. कोलंबिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कोलंबिया इज हैविंग द 1400 स्पीसीज ऑफ द बर्ड. अंडरस्टूड, 1400 नंबर मैं नहीं बोल रहा हूं, स्पीसीज, द टाइप्स ऑफ द बर्ड्स, 1400 टाइप्स ऑफ द बर्ड्स आर प्रेजेंट देयर इन द कोलंबिया. इन न्यूयॉर्क विच इज इन द टेम्परेट रीजन जस्ट अवे टू दैट, हम ग्रेडियंट की बात कर रहे थे, कोलंबिया ट्रॉपिकल रीजन में था, न्यूयॉर्क टेम्परेट रीजन में जा रहा है, वहां पे 1400 से बच के कितनी हो गई, केवल 105 स्पीसीज हो गई है. और जैसे जैसे हम और ऊपर जाते हैं, पोलर एरिया की तरफ जाते हैं, दैट इज ग्रीनलैंड, दैट इज इन आर्कटिक रीजन, ओनली 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड. यही तो ग्रेडियंट है. कोलंबिया इक्वेटर के पास है, 1400 स्पीसीज थी बर्ड्स की. न्यूयॉर्क टेम्परेट रीजन में पड़ता है, यहाँ कम हो गई 105. You can understand from this also, Colombia here 1400, New York here, that is 105, Greenland is here, only 56 species of birds is there. So are you getting my point? What is latitudinal gradient? ये एक एग्जाम्पल था जिससे हमने समझने की कोशिश की है. कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं. इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन. इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में है, यहाँ पे भी रिच बायोडाइवर्सिटी है एंड इट हैज मोर देन 1200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स. 1400 कोलंबिया में थे, ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया भी है, तो यहाँ पे भी ग्रेट रिचनेस ऑफ द स्पीसीज इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, ग्रेट रिचनेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड, दैट इज 1200 स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स. अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, लंग ऑफ द अर्थ, lying on the equator. So Amazonian rainforest present in the South America is known for the greatest biodiversity on earth, and you can be shocked when you understood the biodiversity of the Amazonian rainforest. 40,000 plant species are there, 3,000 species of the fishes, 1,300 species of the birds, 420 species, 427 species of the mammals, 427 species of the amphibians, 378 species of the reptiles, and around 1,25,000 species of the invertebrates are being found there in Amazonian rainforest. The lung of the earth, maximum oxygen is being produced. क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं 40,000 प्लांट की स्पीसीज हैं एंड मैनी मोर टू डिस्कवर्ड. हमने ये लिस्ट वहां से उठाई है जो अभी तक एक्सप्लोर हो चुके हैं और अभी भी पूरा अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट एक्सप्लोर नहीं हो पाया है. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. और आप समझ सकते हैं व्हाट इज द ग्रेडियंट. तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी कम होती है, सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रीजन में होती है और सबसे कम आर्कटिक रीजन में होती है. तो इज दिस क्लियर टू यू ऑल? डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन. द क्वेश्चन इज देयर, द रीजंस फॉर द ग्रेडियंट्स, द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. बहुत बार पूछा गया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन. पूछा ही पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. There are three basic reasons. Many of the scientists have proposed their own hypothesis, but all the hypothesis comes to a conclusion that these three are the main reasons which affects the लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. क्यों ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डाइवर्सिटी है और पोलर रीजन में कम है? तो उसके पीछे द रीजन नंबर 1, द स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. स्पेसिएशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम. स्पेसिएशन मीन्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नॉट अ इवेंट दैट वंस अकर्स एंड द इवेंट गेट्स ओवर. ये लगातार चलते रहने वाली प्रोसेस है, कंटिन्यूअस स्पेसिएशन की प्रोसेस होती है, बिकॉज इवोल्यूशन इज एन एवर लास्टिंग प्रोसेस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज फॉर्मेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन. यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है आपको. The speciation is the function of time. The temperate areas undergone in the frequent glaciation that kills the species, while tropics remains undisturbed from such activities. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना है अपने को.
the temperate areas and the polar areas has undergone in the process of glaciation. ग्लेशिएशन मतलब ग्लेशियर्स का बनना और बिगड़ना. ग्लेशिएशंस होगा तो वहां पे जितना भी कम्युनिटीज बनी होगी तो वो सारी की सारी कम्युनिटीज उसके साथ में डिस्टर्ब हो जाएगी और नई कम्युनिटी बनेगी. सो दोज एरियाज हैज अंडरगोन इन द फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन एंड ड्यू टू द फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन दिस वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू मेक अ कांस्टेंट species, a rich species of the biodiversity, a rich biodiversity thereon. So this is clear to you all. Moving on to the next point. हाँ, अभी इसमें अपन समझे. और जबकि ट्रॉपिकल एरियाज में इस तरीके की एक्टिविटीज हुई नहीं, तो ट्रॉपिकल एरियाज रिमेन अनडिस्टर्ब फ्रॉम सच काइंड ऑफ द एक्टिविटीज. ट्रॉपिकल एरियाज में डिस्टर्बेंस कम था तो वहां पे टाइम मिला टू एस्टेब्लिश द रिच बायोडाइवर्सिटी. जबकि जो टेम्परेट एरियाज थे और पोलर एरियाज थे वहां पे इसके लिए टाइम नहीं मिला. कंटिन्यूअस ग्लेशिएशन था, उसने डिस्ट्रक्शन किया, तो वॉट एवर द स्पीसीज वर प्रोड्यूस दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड. तो बार बार स्पीसीज का बनना रहा तो this is very much difficult to establish a rich biodiversity thereon. Okay, moving on to the next. The tropics have the warm temperature with high humidity which provide the favorable condition throughout the year. Hence these areas are less seasonal, more constant and more predictable than the temperate one. बहुत straightforward है. इस रीजन में सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ज़्यादा टेम्परेचर होगा और ज़्यादा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के कारण दे आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ द बायोमास थ्रू आउट द ईयर. और बायोमास ज़्यादा बनेगा तो इसके ऊपर डिपेंड करने वाले एनिमल्स होंगे, वो डिपेंड करेंगे. और कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं आएगी. दे आर लेस सीजनल, मोर कॉन्स्टेंट एंड मोर प्रिडिक्टेबल देन द टेम्परेट वन. थर्ड कॉन्सेप्ट इज देयर, द ट्रॉपिक्स रिसीव्स मोर सनलाइट. ये आप जानते हैं, द ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज बिलीव्ड इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी. The sun shines on the equatorial line. जैसे जैसे the maximum insolation of the earth occurs on the equatorial line. जैसे जैसे, और अर्थ का शेप कैसा है, ओवल है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो सन साइन कम होता जाता है. तो सन साइन अगर यहाँ पे ज्यादा है तो डेफिनेटली दिस एरिया विल बी मोर प्रोडक्टिव बिकॉज sunlight is required for the purpose of photosynthesis. So tropics receives more sunlight throughout the year. Hence the communities are more productive to support the life. So this is what the reasons for the maximum biodiversity in the tropical area in comparison to the temperate one or the Arctic region. Dear students, after understanding the latitudinal gradient, the next concept under the distribution of biodiversity is species area relationship curve or species area relationship. This is very important question for your examination. Once again I am repeating, बहुत important question है. You can think on that कि this is a kind of gifted question for your examination. So species area relationship, once again very important question. Species area relationship का मतलब ये होता है कि the species richness can be considered or can be explained with the explored area. किसी एक एरिया में स्पीसीज की रिचनेस किस तरीके से है वो समझाया जाता है. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से स्पीसीज मिल रही हैं, वहाँ पे ज़्यादा है कम है, किसी एरिया में ज़्यादा हो रही है तो क्यों है, किसी एरिया में कम हो रही है तो क्यों है. दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड विद दिस रिलेशनशिप. सो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज स्टडीड एंड प्रेजेंटेड बाय द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. सो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज प्रेजेंटेड बाय, रिमेंबर ये रटना पड़ेगा आपको, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. और इसी कारण इसको हम्बोल्ट इक्वेशन भी कहा जाता है. क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम दिस वे आल्सो, हम्बोल्ट इक्वेशन, हम्बोल्ट कॉन्सेप्ट. सो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वाज प्रेजेंटेड बाय द अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट. दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हम्बोल्ट इक्वेशन, हम्बोल्ट कॉन्सेप्ट. what he observed, the species richness increased with increasing the explored area. बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है. जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे जैसे एरिया बढ़ता चला जाता है, द स्पीसीज रिचनेस विल इंक्रीज डेफिनेटली. अगर हम बात करते हैं एक छोटे से गार्डन की तो स्पीसीज रिचनेस वहाँ पे कम होगी. जैसे जैसे हम वहाँ पे फार्मलैंड का डेवलपमेंट करेंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, और बड़े एरिया में जाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी. दिस इज वेरी मच कॉमन कॉन्सेप्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया. बट लेकिन ऐसा नहीं है कि दिस ऑलवेज इंक्रीज्ड यूनिनैमसली, हमेशा बढ़ती चली जाएगी, बट ओनली अप टू अ लिमिट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे अपन एरिया बढ़ाएंगे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है. स्पीसीज रिचनेस विल इंक्रीज बाय एक्सप्लोरिंग द एरिया, एक्सप्लोरिंग द सरफेस एरिया, बट टिल अ लिमिट. एक लिमिटेड
एक्सटेंट के लिए, उसके बाद में स्पीसीज रिचनेस का बढ़ना वहां पे रुक जाएगा एंड द रिचनेस विल गेट स्टेबलाइज, पूरी तरीके से एक हाइपरबोला कर्व का फॉर्मेशन होगा। तो अगर इस कंडीशन के लिए अपन एक कर्व प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं विद द इंक्रीज्ड एरिया एंड द एक्सप्लोर्ड एरिया एंड द स्पीसीज रिचनेस, अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं इन दोनों के बीच में, इस एरिया को, इस रिलेशनशिप को समझाने के लिए, so that graph will be a rectangular hyperbola. रटना है my dear child, if we are going to plot a graph between the explored area and the species richness, so that will be a rectangular hyperbola. अब क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा क्यों, तो उसके पीछे रीजन ये है कि इनिशियली द रिसोर्सेस वर अनलिमिटेड। तो जब भी स्पीसीज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, फ्लरिश होना शुरू हुआ, तो दे आर गोइंग टू यूज द रिसोर्सेस और अनलिमिटेडली दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर देमसेल्फ। उनका ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हेन रिसोर्सेस आर गेटिंग लिमिटेड, देन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीसीज इज आल्सो गेटिंग स्टेबलाइज। तो शुरुआत में कर्व ऊपर जाता है, देन इट इज बीइंग स्टेबलिश। अपन वो देखते हैं कर्व को भी। रिलेशनशिप कर्व में बी स्ट्रेट लाइन, एक और सिचुएशन बनती है। दो तरीके की सिचुएशन उन्होंने बताई थी। वन सिचुएशन इज देयर कि हाइपरबोला कर्व में भी देयर, और वो किस कंडीशन में कि इनिशियली द एक्सप्लोर्ड एरिया इंक्रीज और स्पीसीज रिचनेस भी बढ़ता है, लेकिन आफ्टर अ लिमिट, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लिमिट द स्पीसीज रिचनेस विल नॉट इंक्रीज देयर। सो सेकेंडली एक और कंडीशन बनती है जहां पे स्पीसीज रिचनेस हमेशा बढ़ती चली जाए और ये कर्व हाइपरबोला नहीं होके एक सीधी लाइन हो जाए, एक स्टीपर लाइन हो जाए। तो इस रिलेशनशिप कर्व में भी है स्ट्रेट लाइन और स्टीपर लाइन, और वो किस कंडीशन में होगी, ऑन द लॉगरिथमिक स्केल। लॉगरिथमिक स्केल का मतलब होता है जहां पे द रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड। नेचुरली पॉसिबल नहीं है ये। व्हेन द रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड देन ओनली द कर्व विल बी अ स्टीपर लाइन। जैसे जैसे आप एरिया बड़ा करते चले जाएंगे विद द अनलिमिटेड रिसोर्सेस, देन ओनली द लाइन विल बी स्टीपर। ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है किस सिचुएशन में कर्व स्टीपर होगा और किस सिचुएशन में हाइपरबोला डेवलप होगा, एंड दे विल गिव द एग्जांपल्स आल्सो। अपन समझेंगे उन चीजों को। तो हम जब इसको कुछ इक्वेशंस के थ्रू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखते हैं, तो हेम्बोल्ट इक्वेशन को एक्सप्रेस किया जाता है जब हाइपरबोला हुआ, मतलब द नॉर्मल कॉन्सेप्ट व्हेन द एरिया इज द लिमिटेड, ऑन दैट सिचुएशन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज s is equal to c a to the power of z. The equation of the Humboldt equation or Humboldt species area relationship curve is s is equal to c a to the power of z. c a to the power of z ये किसके लिए होगा, जब कर्व कैसा आ रहा होगा, हाइपरबोला आ रहा होगा। सेकेंड कंडीशन, जब स्टीपर कर्व होगा, एक सीधी लाइन बन रही होगी, खड़ा कर्व बन रहा होगा फॉर द अनलिमिटेड एरियाज, तो उस कंडीशन में लॉगरिथमिक स्केल पे बताना होगा कर्व को। ये पूछा जाता है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग एस, इसका लॉगरिथमिक स्केल बनाएंगे तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। एम लॉग ये आपको करना है, याद रखना है, एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर ऑफ जेड फॉर द हाइपरबोला कर्व। नॉर्मली यही होगा। और स्टीपर कर्व होगा तो लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, दैट इज स्टीपर वन। वेयर अब इन टर्म्स का मतलब समझ लें। एस का मतलब होता है स्पीसीज रिचनेस, ए का मतलब होता है एक्सप्लोर्ड एरिया, जो भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। जेड हमेशा पूछा जाता है, जेड ध्यान रखना है। स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। स्लोप ऑफ लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जेड इज व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन और रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एंड सी इज द वाई इंटरसेप्ट। Are you getting my point? एस स्पीसीज रिचनेस, ए एरिया हो जाएगा आपका। जेड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ द लाइन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, एंड सी इज द वाई इंटरसेप्ट। अपन इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जस्ट सी, हम्बोल्ट ने क्या किया था, दो एक्सेस लिए, एक एक्सेस पे एरिया बढ़ रहा है और दूसरे पे रिचनेस बढ़ रही है। अब उन्होंने ये बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एरिया। धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है, लेकिन जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉर्मली द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द एरिया। धीरे धीरे एरिया बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, बट अप टू अ लिमिटेड टाइम, और उसके बाद में ड्यू टू द रिसोर्स आर लिमिटेड वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये कर्व कैसा बनेगा, हाइपरबोला, और ये नॉर्मल कर्व होगा। रियलिस्टिक कर्व यही होता है। एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर ऑफ जेड इज दैट।
अगर लॉगरिथमिक स्केल पे इसकी बात करें, अगर रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड और एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अनकाउंटेबल लिमिटलेस एरिया है, तो उस कंडीशन में ये पूरी तरीके से स्टीपर होगा और ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो सकता है पूरी तरीके से। जैसे जैसे ऊपर शिफ्ट होता जाएगा एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ता चला जाएगा और कर्व पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये नीचे आता जाएगा मतलब रिचनेस खत्म होती जा रही है और ये ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिचनेस बढ़ती जा रही है। तो लेट अस सी इस जेड का क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द जेड इंडिकेट्स द स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज्ड विद द रिडक्शन इन द एक्सप्लोर्ड एरिया। जेड इंडिकेट्स द रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। जेड इंडिकेट्स द स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज्ड विद द रिडक्शन इन द एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया कम होता जाता है स्पीसीज रिचनेस भी कम होती चली जाती है। The value of Z under the hyperbolic situation is normally 0.1 से 0.2। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ Z when जब 0.1 से 0.2 के बीच में आता है, नॉर्मल वैल्यू Z की आती है 0.1 से 0.2। ये पूछा जाता है तो यू मस्ट रिमेंबर दिस वन। ये किस कंडीशन में होता है? एग्जाम्पल के साथ में, व्हेन एरिया इज वेरी स्मॉल एज ब्रिटेन में मिलने वाले प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, ये सारे एग्जाम्पल पूछे गए हैं। मोलस्का डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूयॉर्क। सो जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में होती है जब हाइपरबोला बनेगा, व्हेन एरिया इज स्मॉल। और एग्जांपल्स लिया हुआ है प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन द कैलिफोर्निया, मोलस्का इन द न्यूयॉर्क। और यदि जेड की वैल्यू अगर हम देखते हैं कि अगर जेड स्टीपर होता जा रहा है, कर्व पूरी तरीके से सीधा होता जा रहा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी 0.6 से 1.2, बहुत ज़्यादा होती जाएगी। नॉर्मल वैल्यू क्या है? 0.1 से 0.2। जब स्मॉल एरिया है, धीरे धीरे जेड सीधा होगा, मतलब रेग्रेशन कोएफिशिएंट बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? 0.6 से 1.2। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का बढ़ने का मतलब क्या है? द एक्सप्लोर्ड एरिया इज इंक्रीज्ड। सो स्टीपर जेड लाइन इंडिकेट्स द वेरी लार्ज एक्सप्लोर्ड एरिया लाइक कंटिनेंट्स। अगर वैल्यू और बढ़ गई, जैसे 1.5 आ गई, so that is an example for value 1.15, that is for the frugivorous birds and the mammals in the tropical forest. So I think this is very much clear to you all what is the importance of species area relationship curve. You will be most welcome with your question. You just write down your question in the comment box. I will respond positively to your questions. एक कॉमन पॉइंट अगर निकाल के देखते हैं पूरे के पूरे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का, तो लार्जर द एक्सप्लोर्ड एरिया, मोर स्टीपर द जेड लाइन, स्मॉलर द एक्सप्लोर्ड एरिया, द हाइपरबोला विल बी रिसीव्ड। इज इट क्लियर टू यू ऑल? कुछ और एस्पेक्ट देख लेते हैं अपन बायोडाइवर्सिटी के। एक डेविड टिलमैन का कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में उन्होंने बताया था। मैनी ऑफ द हाइपोथेसिस हैज बीन गिवन बट वी आर टेकिंग ओनली द इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस। उन्होंने समझाया the long term ecosystem, David Tillman, the long term ecosystem experiment using outdoor plots. इन्होंने कुछ experiments किए using outdoor plots on the ecosystem. He confirmed that these plots are linked to the species richness in the community. उनका experiment भी पूरी तरीके से species richness के साथ में associated था। He concluded, ये दो point important हैं। He concluded the plots with more species shows less year to year variation in the biomass. The plots with more species shows less year to year variation in the biomass. समझ में आ रहा है? जिनमें ज्यादा स्पीसीज होंगी उसमें कम वेरिएशन दिखाई देगा। Increased diversity contributed to the higher productivity. Are you getting my point? जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। सो इट इज क्लियर टू यू ऑल, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस वाज प्रेजेंटेड बाय पॉल एरलिच। इनके नाम से ही पूछा जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल एरलिच। व्हाट ही एक्सप्लेन्ड द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी। किसी बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का क्या असर पड़ेगा किसी भी कम्युनिटी के ऊपर। ही एक्सप्लेन्ड द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का रिडक्शन होता जा रहा है तो कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इकोसिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसको उन्होंने बहुत मज़ेदार तरीके से, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाया था। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ही डज। उन्होंने एक्सप्लेन किया, ही एज्यूम द इकोसिस्टम एज एन एरोप्लेन। उन्होंने माना कि इकोसिस्टम क्या है, एक एरोप्लेन है
जिसमें सारे के सारे पार्ट्स रिवेट्स से जुड़े हुए हैं. रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस समझना है अपने को. ही एज्यूम दैट द इकोसिस्टम एज एन एरोप्लेन. उन्होंने माना कि द इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कंपैरिजन किसका किसके साथ में, तो ही कंक्लूडेड और ही कंपेयर्ड द इकोसिस्टम विद एन एरोप्लेन. एरोप्लेन इकोसिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है. तो जैसे एरोप्लेन बहुत सारे छोटे छोटे रिवेट्स से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे रिपिट्स से जुड़ा है. रिवेट्स का मतलब रिपिट्स, छोटी छोटी रिपिट्स से जुड़ा हुआ है. तो उसी तरीके से इकोसिस्टम बहुत सारी छोटी छोटी स्पीसीजेस से मिलकर बना हुआ है. तो उन्होंने क्या माना कि इकोसिस्टम एज एन एरोप्लेन इन विच ऑल द पार्ट ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ रिवेट्स. तो इकोसिस्टम में क्या हो जाएंगे, वो रिवेट्स स्पीसीज हो जाएंगे. अब उनका ये कहना था, इफ ऑल द पैसेंजर्स विच आर ट्रेवलिंग इन अ एरोप्लेन विल स्टार्ट कैरिंग अ रिवेट विद देम टू होम. एक एक रिवेट को उठा के वो अपने साथ ले जाना शुरू कर दें. जितने भी पैसेंजर वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, इफ़ दे स्टार्ट टेकिंग आउट द रिवेट टू टेक द होम देयर, तो रिवेट को घर ले जाने का मतलब क्या हो रहा है, दे आर किलिंग द रिवेट, दे आर टेकिंग अवे द रिवेट, दे आर जस्ट किलिंग द स्पीसीजेस. तो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होना शुरू हो जाएगा इनिशियली, क्योंकि रिवेट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे. जिन स्पीसीज का उन्होंने यूज़ किया वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी. तो इनिशियली एरोप्लेन के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे इफ द प्रोसेस इज बिंग कंटिन्यूड, देन व्हाट हैपेंस, द एरोप्लेन विल बिकम डेंजरसली वीकर, बहुत कमज़ोर होता जाएगा. और जब सारे रिवेट्स निकाल लिए जाएंगे तो उस समय क्या होगा, एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा. द इकोसिस्टम विल गेट destroyed. This is what the concept of rivet popper hypothesis. So initially it may not affect the aeroplane, but when more rivets removed, the aeroplane become dangerously weaker and may destroyed. destroy होने का मतलब ecosystem may get destroyed. Remember, the rivets which are placed on very important position, they are very much crucial in comparison to those who are placed in non important position, they are less crucial. तो यदि हम ऐसी स्पीसीज को बाहर निकालें, ऐसे रिपिट्स को बाहर निकालें, ऐसे रिवेट्स को बाहर निकालें जो एरोप्लेन के सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत जल्दी एरोप्लेन को डिस्ट्रॉय करेगा, मीन्स इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा. जैसे सपोज करें, इफ द रिवेट्स ऑन द विंग्स ऑफ एरोप्लेन आर रिमूव्ड, so that will directly affect the survival of the aeroplane. means यदि हम कुछ ऐसी species those are directly associated with the survival of ecosystem, उनको अपन कहते हैं की स्टोन स्पीसीजेज. तो जो रिवेट्स ऑन विंग्स थी उनको कंपेयर किया उन्होंने किसके साथ में, की स्टोन स्पीसीजेज के साथ में. तो वो क्या होगा, एरोप्लेन बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कौन सी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हुआ, कितनी स्पीसीज का एक्सटेंशन हुआ. तो स्पीसीज का एक्सटेंशन, किस स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होना, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ में एसोसिएट होकर फाइनली इकोसिस्टम को एक्सटिंक्ट करेंगे, इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे. यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है माय डियर चाइल्ड फॉर यू, he compared the aeroplane with the ecosystem, he compared the rivets with the species, and he compared the rivets on the wings with the keystone species. तो I think rivet popper hypothesis समझ में आ गया कि यदि हम continuous यूज़ करेंगे स्पीसीजेस का, कंटिन्यूस एक्सटिंक्शन होगा स्पीसीजेस का, तो धीरे धीरे इकोसिस्टम भी खत्म होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा, और फाइनली इकोसिस्टम विल गेट डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली. सो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ the latitudinal gradients, the species area relationship curve, and the rivet popper hypothesis. These three topics, all three topics are very important for your final examination, so that we have covered today. If you have any kind of the problem, doubts in such kind of such topics, so you may directly ask the question in my comment box. Okay, thank you.